A warm good afternoon to all of you present here. My name is Subhash and I welcome all the honorable management, teachers and jury, and of course the sterling participant and students. Today we are having a brilliant student of RPS group from class 8th Himalaya who compete in a debate competition, sharing their views about did Britishers rule benefit India? क्या भारत के अंदर अंग्रेजी राज से कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? डिड ब्रिटिश रूल इंडिया? क्या भारत को ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया है? कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है? देयर व्यू, द गिवन टाइटल एंड द हिडन aptitude, the students of Himalaya present here. Now I see all the participants ready to come on the stage and debate with the topic, did British rule? Now I see all the participants are ready to come on the stage and share their view about the topic. So who is going to break the ice? So students and audience, put your hands together. The first speaker of the debate. I am Udval from 8th Himalayas from RPS Narnaul. Today we all are here for a debate on topic of Britishers to India. I am in favor of Britishers. Coming of Britishers made a great development in India in many ways. Firstly, we will discuss about education. Britishers made an education system in India. Today we all are coming to schools and learning scientific things, maths and other knowledgeable things. But I think if the Britishers had not come, then we would be learning the religious and ritual things, not knowledgeable. Britishers were a resource for English language to bring in India. Britishers made a great development in railway networks also. The first train of goods ran in 1832 in Madras for transporting cotton, and the first passenger train ran on 16th of April 1853 from Bombay to Thane of a distance 34 km. The Britishers made India a democratic country. So, looking through these points, I think that Britishers made India a very buxomy and beneficial for India. Thank you. Hello everyone, I am Khushi from 8th Himalayas and from RPS Narnaul. Today we are here for a debate on a topic of Britishers to India. I am against of Britishers. We all know that our country is called the Golden Bird, and we all also know that the British came under the rule of Jahangir. After the arrival of the British, after the rule of the Jahangir, the condition of India kept deteriorating after deteriorating, and many taxes and policies were made which causes a lot of damage to peasant. A policy, subsidiary alliance, in which the Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces, and they had to pay for the British armed forces, and if they were failed to make the payment, the part of their territory was taken as penalty. And the Jallianwala Bagh massacre, the Rowlatt Act and the Sedition Act of 1870, all this went wrong with Indians. With all this, I think that arrival of British in India causes loss. खुशी ने कहा कि हमारे इंडिया को गोल्डन बर्ड कहते थे, पर सारा पैसा तो राजाओं के पास ही होता था. प्रजा को क्या पता होता था कि राजा पैसों को कैसे यूज़ कर रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है. सारा पैसा अगर वो अपने लिए यूज़ करता हो तो वो तो उसने खुद रखा था गोल्डन बर्ड नाम, पर ये थोड़ी ना पता था इंडिया को कि वो कैसे यूज़ कर रहा है पैसों को. इंडियन रूलर्स ने अपने काम के लिए नहीं किया, उसको प्रजा में भी बांटा था. और जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें 173 ईयर्स में 45 ट्रिलियन रुपए लेके गए थे, तो इसीलिए इंडिया की एक आइडेंटिटी मिटी थी. उससे पहले आइडेंटिटी तो थी ना एक इंडिया की. जैसे अनामिका ने कहा कि ब्रिटिशर्स रुपए लेके गए थे इंडिया से, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो डेवलपमेंट किया तो वो रुपए हम उसके लिए यूज़ भी हो सकते हैं.
दीदी आप कह रहे हो उन्होंने डेवलपमेंट किया, पर उन्होंने डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगा, वो सारे पैसे यूरोप में ले गए। वो इंडिया से कोहिनूर का हीरा भी ले गए, जो कि अभी भी उन्हीं के ही पैलेस में है, जबकि वो इंडिया में मिला था। आई एम यशिका फ्रॉम क्लास 8 हिमालय। मैंने जैसे खुशी ने कहा कि हम इंडिया का गोल्डन बर्ड कहते थे, पर सारा पैसा तो राजाओं के पास होता था। क्या वो बताते थे हमारे पास कितना पैसा है, या फिर प्रजा को देते थे और कुछ भी बनवा लेते, उनसे कंसल्ट करते थे कि ये बनवाना है, ये करना है, कुछ भी नहीं करते थे और प्रजा को पैसे नहीं देते थे वो लोग इतने। और जो उनके लिए अच्छा काम करता था खाली उन्हें ही पैसे दिया करते थे। जैसे अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते थे पेंटर्स, उन्हें ही दिया करते थे, आम जनता को वो पैसे नहीं दिया करते थे। उससे इंडिया की शान भी तो बढ़ी थी। उन्होंने इसीलिए तो मॉन्यूमेंट्स बनाई थी कि इंडिया की शान बढ़े। क्या सभी ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही किया था? वो तो सारा रुपए यूरोप लेकर के गए थे, उन्होंने तो यहाँ कुछ भी नहीं बनवाया जैसे उन्होंने बनवाया। इंडियन रूलर्स ने जो वो मॉन्यूमेंट्स बनवाए तो इंडिया को उसकी केयर भी तो करनी चाहिए। जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो क्या केयर करते हैं? ताजमहल है, इंडिया केयर करता है? उसके इतना ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से ताजमहल पूरा ख़राब हो चुका है, उसकी केयर करनी चाहिए इंडियंस को। अगर इतने ही वो राजाओं के वो होता है कि राजा ने हमारे लिए क्या करा, इतना करना चाहिए, फिर उनकी केयर उन्हें। डेवलपमेंट और इंग्लिश एजुकेशन ये सब डेवलपमेंट्स भी किए हैं ब्रिटिशर्स ने, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, ये नहीं है। कि अभी भव्या ने कहा कि वो अभी ताजमहल वगैरह की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। गवर्नमेंट ने अभी एक रूल बनाया कि ताजमहल से 10 किलोमीटर दूर तक कोई कुछ नहीं कर सकता, और वहाँ पे से लोग पैदल जाते हैं, क्योंकि पहले एक बार ख़राब हो गया था। और अब मॉन्यूमेंट्स की कदर है, कम से कम राजाओं ने मॉन्यूमेंट्स बनवाए, तो ब्रिटिशर्स ने तो कोई मॉन्यूमेंट ही नहीं बनवाया। ब्रिटिशर्स ने तो इंडिया में कुछ नहीं बनवाया। अब बंगाल फेमाइन 1770 में कितने लोग मारे गए, इंडिया में कम से कम पहले ऐसा तो नहीं हुआ। चाहे उन्होंने प्रजा को पैसा दिया हो न दिया हो, पर इंडिया के लिए वो काम में बहुत आया है। 1857 के रिवोल्ट में बारे में सुना ही होगा, तो फिर उसमें जो मेरठ से दिल्ली गए थे वो मुगल बादशाह को ही क्यों फिर से राजा बनाना चाहते थे? ब्रिटिशर्स इतने अच्छे तो उन्हीं को ही रखते, क्यों चेंज करना चाहते थे वो? जैसे तमन्ना ने बोला कि ब्रिटिशर्स ने फेमाइन के टाइम कुछ नहीं करा। फेमाइन के लिए ब्रिटिशर्स ने इतनी सारी कमीशंस लगाई थी, 4 कमीशन लगाई थी। फेमाइन कमीशन जो थी उसमें उन्होंने डिसीजंस बनाए थे कि क्या करना चाहिए उनके लिए, और उस पर उन्होंने फंड भी करा था। जो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उन्होंने वो अपने उसके लिए, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया था वो अपनी वाइफ के उसमें करा था। अगर इतने पैसे वो पब्लिक के काम के लिए खर्च करता तो शायद। दीदी आप बोल रहे हो ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं बनवाया, इंडिया का राष्ट्रपति भवन ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, आपके शाहजहां किसी ने नहीं बनवाया था। तुम कह रहे हो कि ब्रिटिशर्स से पहले भी इंडिया अच्छा था, पर आई थिंक अगर ब्रिटिशर इंडिया आते तो मुगल एम्परर के वंशज ही यहाँ राज कर रहे होते। अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो आज मुगलों का राज होता है यहाँ पे। यहाँ पार्लियामेंट नहीं होती और ना ही प्रेसिडेंट। और जैसे ईरान इराक है, वहाँ ब्रिटिशर्स ने राज नहीं किया था और आज वो तबाह है। अगर यहाँ इंडिया में भी नहीं किया होता, अमेरिका में तबाह कर देता आज अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए होते तो। और भी तो बाकी सभी कंट्री है, उनके अंदर भी तो किसी ने ब्रिटिश ने नहीं किया, तो क्या वो सभी बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या उन्हें कुछ भी नहीं आता हो? क्या सभी बर्बाद है? दीदी आप कह रहे हो कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो इंडिया की हालत इराक ईरान जैसी होती। वो पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब है। जैसे कि जापान ही ले लो, जापान में ब्रिटिशर्स ने कभी रूल नहीं किया, फिर भी वो आज इतना ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में। जापान आज टेक्नोलॉजी में आगे है क्योंकि जापान को अमेरिका ने हेल्प की थी और इस वजह से वो आगे है, वरना वो भी पीछे होता। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में एक एपिडेमिक फैला था, स्मॉल पॉक्स। उसके लिए भी तो ब्रिटिशर्स ने ही हेल्प की थी इंडिया की। उस टाइम जो इंडियंस थे उसके पास सैनिटरी नॉलेज ना होने की वजह से उसका सॉल्यूशन इंडिया नहीं निकाल पा रहा था, तो उसकी भी हेल्प ब्रिटिशर्स ने की थी। उन्हें इसके लिए एक वैक्सीनेशन एक्ट भी पास किया था 1892 में, और उसके लिए उन्हें हर रीजन में सैनिटरी कमिश्नर्स भी लगाए थे ताकि उनको डिजेंट्रीज मिल सके, औषधियाँ मिल सके। तो वो भी तो ब्रिटिश ने ही किया था। डिजीज की बात आई है तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, इंडिया में स्मॉल पॉक्स इतना बड़ा एपिडेमिक था जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई और कुछ लोगों की बहुत बुरी हालत हुई, मरने से भी बुरी। तो उनके लिए भी वैक्सीन ब्रिटिशर्स ने ही तो इंट्रोड्यूस करवाई थी इंडिया में। अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो स्मॉल पॉक्स का ना पता चलता, ना उसके लिए वैक्सीन आती, और लोग अगर किसी की डेथ होती तब भी यही कहा जाता इसकी नॉर्मल डेथ हो चुकी है। अब भी जैसे कोविड फैल रहा है तो कई जगह पे जो इंडिया का जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, जो मतलब जहाँ पे ज़्यादा किसी की पहुँच नहीं है, बहुत पीछे है, वहाँ आज भी अगर कोविड से किसी की डेथ होती है तो ये माना जाता है उसकी नॉर्मल डेथ है। एंड सेम इन सम केसेस
ऑफ विलेजेस ऑफ इंडिया। ये इंडिया के विलेजेस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। दीदी आप कह रहे हो कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन उन्होंने हमको दी, हमने उनको बहुत ज़्यादा दिया। सर्जरी की नॉलेज चरक संहिता से उन्होंने ली थी और चरक संहिता में ये बताया था कि सर्जरी कैसे हो सकती है। चरक संहिता में बॉडी के हर पार्ट की सर्जरी की नॉलेज है और उनसे पहले उनको सर्जरी पता ही नहीं था होता क्या था। इतने लोग बीमारियों में नहीं मरे जितने ब्रिटिशर्स ने मारे हैं इंडिया के लोगों को। जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे थे, वुमेन्स, चिल्ड्रन, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, और बिना वार्निंग दिए। और आप कह रहे हो कि जो रिलीजियस बिलीफ है ब्रिटिशर्स ने वो ख़त्म करके इंग्लिश एजुकेशन लाकर बहुत बढ़िया काम करा। अगर इंग्लिश एजुकेशन नहीं आती तो क्या इंडिया डेवलप नहीं हो सकता था? आपने कहा जापान की हेल्प अमेरिका ने करी तब जापान इतना डेवलप है। हो सकता है इंडिया भी किसी की हेल्प से या बिना किसी की हेल्प से भी डेवलप हो जाता। आप ये कैसे कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है? और आप लोग कह रहे हो कि जापान इतना ग्रो कर गया, अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था और जब इस बात का अमेरिका को रियलाइज हुआ तब उसने जापान की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और हर चीज़ में हेल्प की थी। इसी वजह से आज जापान इतना आगे है। जैसे तमन्ना ने बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने से कुछ नहीं हुआ, ठीक है मैं मानती हूँ कि उन्होंने रिलीजियस वगैरह बिलीफ्स वगैरह पे उन्होंने करा, बट उन्होंने मॉडर्न इंडिया के उसमें बहुत हेल्प करी। अगर जापान जैसे अमेरिका की हेल्प से वो इतना आगे हुआ, अगर इंडिया में भी कोई हेल्प कर देता, वैसे तो क्यों करता आपको क्या पता, और अगर और नहीं करता तो हो जाता डेवलप, बस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अभी हम जहाँ पर बैठे हैं हम वहाँ पर नहीं बैठते, हम सड़कों पे यूं ही घूम रहे होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का, आप बिना इंग्लिश के कैसे इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे? आपको फॉरेन में आपको कोई समझेगा ही नहीं, तो आपको वैसे ही इतनी इमेज खराब हो जाएगी आपकी। और अगर ब्रिटिशर्स राज नहीं करते तो कोई और दूसरा कंट्री राज कर लेता है इंडिया पे। तो इंडिया को कुछ पता ही नहीं था, उन्हें वेपन्स नहीं पता था, उनकी आर्मी को डेवलप, हमारी आर्मी को डेवलप ब्रिटिशर्स ने किया था। आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो तो उन्होंने इंडिया की जो मोस्ट एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज़ और IITs, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इलाहाबाद, ये सब ब्रिटिशर्स के इंट्रोड्यूस ही है इंडिया में, और ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था और ये आज इतनी चल रही हैं। IIT के सिलेक्शन के लिए आज इतना लोग मानते हैं, तो आज ये बहुत फेमस है। मैनी एजुकेशनल कमिश्नर्स वर लॉन्च्ड बाय द ब्रिटिश like University Commission. This commission was launched in 1902 during Lord Curzon's term by Thomas Rayleigh. It was introduced to study about universities and introduce reforms. Calcutta University Commission. It was launched in 1912 during Lord Amersfoort's term by Michael, introduced to study of conditions of the universities. And many more commissions were also made. और आज भी उनकी चलाई हुई यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। आज हम उन्हीं की चलाई हुई यूनिवर्सिटीज़ को, उनमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए बहुत IIT, JEE, एडवांस इन सब के पेपर देते हैं ताकि उनका IIT में सिलेक्शन हो पाए। ये सब ब्रिटिश का ही तो स्टार्टेड है। और एक दूसरा UPSC CSC जो इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और आज ये UPSC इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। आज एक IAS ऑफिसर की पोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर होती है, तो ये भी तो सब ब्रिटिशर्स का इंट्रोड्यूस है। आप अगर ऐसे कह रहे हो तो आप कह रहे हो कि जो जैसे जलियांवाला बाग था उसमें बहुत से लोगों को मारा, इसी तरह राजाओं ने बिना बताए जो पब्लिक थी उनके लोगों को वार के अंदर शामिल किया था। अगर उसके पास सैनिकों की कमी पड़ती थी तो वो बिना किसी ट्रेंड पर्सन को, विलेजर्स को लेके जाते थे वार के अंदर। और इंग्लिश लैंग्वेज उसने बनाई थी लॉर्ड मैकाले ने, लेकिन उसने हमारे फ़ायदे के लिए नहीं बनाई थी। उसने सोचा था कि हम जो वो सिपाहीज लेते हैं उनकी इंग्लिश आर्मी के अंदर, तो हम उनकी भाषा अच्छे से समझ सके और फिर उनके सारे काम कर सके। इस वजह से उन्होंने बनाई थी, ना कि उनके फ़ायदे के लिए। दीदी आप कह रहे हो कि वो उन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनवाई। अगर आपको पता हो तो उनको नॉलेज इंडियंस ने ही दी थी। पहले के ज़माने में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उसमें दूर दूर से आते थे बगल की कंट्रीज़ में से, उनको नॉलेज हमने दी थी और उन्होंने फिर हमारी यूनिवर्सिटी जला के अब हमारी नॉलेज हमें पे ही लपेटी थी।
जैसे भव्य और मक्षिता ने कहा कि उन्होंने एजुकेशन और फेमिनाइन ने हमारी हेल्प की। क्या उन्होंने इतने पैसे लूटे थे? उन्होंने 45 US डॉलर ट्रिलियन रुपीस हमसे लिए थे और साथ में 105.6 कैरेट का कोहिनूर डायमंड भी लिया था। क्या उन्होंने इससे ज़्यादा हमारी हेल्प की थी? इससे तो कहीं ना कहीं कम ही की थी हमारी हेल्प। और आप बार बार ये कह रहे हो ये डेवलपमेंट किया वो डेवलपमेंट किया, अरे अगर नहीं आते तो भी डेवलपमेंट हो सकता था इंडिया का। जरूरी नहीं है ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हुआ है। इंडिया को इतना कमजोर नहीं समझना। और जो ब्रिटिशर्स ने 65 मिलियन लोगों को मारा, उसका क्या? भले ही ब्रिटिशर्स ने कितनों को ही किया, दुनिया में 100 से ज़्यादा देश थे, लेकिन इंडिया इतना डेवलप था इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को चूज़ किया था। वरना क्या जरूरत थी इंडिया में आने की? और किसी कंट्रीज में भी तो जा सकते थे। दीदी आप कह रहे हो जो World War I थी उसमें 67,000 लोग तो इंजर्ड हो गए थे, 62,000 लोग मर गए थे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से। वो भी बिना बताए घरों से उठा के लेकर जाते थे लोगों को। आप कह रहे इंडियन रूलर लेते तो इतना ज़्यादा तो नहीं लेते, तो ना ही उनके युद्ध में इतनी ज़्यादा वो डेथ होती थी। आपने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने की, उससे मदर टंग को कितना नुकसान हुआ है। आजकल स्कूलों में बच्चों को उन्हीं को ही लिया जाता है जिनके पेरेंट्स को इंग्लिश आती है। आप कह रहे हो कि ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में डेवलपमेंट किया। एक ब्रिटिश विंस्टन चर्चिल ने कहा, आई हेट इंडियंस, दे आर डर्टी डॉग, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन व्हाइट टाउन। जैसा कि अभी काव्या ने कहा कि ये सच है, ये सच है। और यही आप कह रहे हो कि ब्रिटिश ने इतना डेवलपमेंट किया। ये डेवलपमेंट की उन्होंने इतनी बेइज्जती की इंडिया की। अब भी आप ब्रिटिश का फेवर करें। और बात है रेलवे डेवलपमेंट की, तो रेलवे डेवलपमेंट की उन्होंने सारा रॉ मटेरियल इंडिया से यूज़ किया था और उन्होंने अपने यूज़ के लिए रेलवे किया था, हमारे यूज़ के लिए नहीं। अगर आज ब्रिटिशर्स नहीं मतलब अगर ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते इंडिया पे तो क्या रेलवे का उनके फ़ायदे के लिए भी डेवलपमेंट नहीं होता? तो आज भी हमारे इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट नहीं होता। और काव्या कह रही है कि पहले तो ये खुद कहते हैं कि इन्होंने वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो पहले से थोड़ा सा डेवलप था। बट काव्या ने कहा कि ब्रिटिशर्स हमें हेट करते थे, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पहले बिल्कुल डेवलपमेंट। जैसे तमन्ना ने कहा कि कोहिनूर ले गए थे, अगर ब्रिटिशर्स नहीं तो कोई और ले जाता। जैसे अफगानिस्तान का राजा पैसों के चक्कर में अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया, वैसे कोई इंडियंस छोड़ लेके चल जाता कोहिनूर को। और जैसे आप बोल रहे हो कि उन्होंने इंडिया को ही क्यों चूज करा, इंडिया को थोड़ी चूज करा, पूरे दुनिया पे राज करते थे। अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो, पूरी दुनिया पे ब्रिटिशर्स का राज चलता था, 1-2 कंट्रीज को छोड़ के। तो और जैसे आप बोल रहे हो कि उन्होंने अपने लिए करा, ठीक है मैं मानती हूँ उन्होंने अपने लिए, यूँ तो उन्होंने साल ही अपने लिए करे सारी चीज़ें, बट हमें उनसे जो फ़ायदा हुआ हमें वो देखना है। यूँ तो जैसे कोई राजा होता था वो सारी अपनी जनता की फेवर में थोड़ी करता था, वो तो ऐसे भी करता था कि उसका भी फेवर हो। तो हमने भी यही देखा है कि ब्रिटिशर्स ने भी अपने फेवर के लिए करा था, हमें जो फ़ायदा हुआ हम वो बता रहे हैं आपको। जैसे ताजमहल बताते हैं उसने मॉन्यूमेंट बनवाई, तो वो भी अपने उसके लिए वाइफ के लिए बनवाई थी, तो वो उससे इंडिया को आज फ़ायदा हो रहा है, वरना तो उसने अपने उसके लिए बनवाई थी। इसी तरह अगर ब्रिटिशर नहीं आए होते तो डेवलपमेंट भी नहीं होता, चाहे उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए। जैसा कि रुद्रबल और ध्रुव ने कहा, जितने लोग मरे 65 मिलियन लोग मरे। जब अकबर ने अपनी लास्ट लड़ाई में जब अपने नवरत्न में से एक शामिल बीरबल को ही, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में से था, उसको ही लड़ाई के लिए भेज दिया। तब क्या उनकी वो हो गया था, कुछ हो गया था तब क्या? आप बोल रहे हो मुगलों ने इतना नहीं मारा, मुगलों की आर्मी में तो सारे इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स की आर्मी में थोड़े थे ब्रिटिश। और काव्या दीदी आप बोल रहे हो विंस्टन चर्चिल ने ये बोला, ये बता दो विंस्टन चर्चिल है कौन? आपने कहा कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनवाए थे, तो क्या सारी मॉन्यूमेंट्स उसने अपनी फैमिली के लिए बनवाई थी? और जैसा कि अभियशिका बंसल ने कहा कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं तो कोई और कोहिनूर लूट के ले जाता, पर इंडिया में इतनी ज़्यादा यूनिटी थी। आप कहते हो कि इंडिया पहले कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे इंडिया को इकट्ठा कर लिया था, अफगानिस्तान तक, पता हो तो। और एक और बात, आप कह रहे हो कि बीरबल को मरवा दिया। बीरबल को पता है क्यों मरवाया था? बीरबल अपने सलाहकार के रूप में लेके गया था अकबर, पर अकबर को एक जरूरी काम आ गया था जिसलिए वो वापस चला गया था। अकबर ने बीरबल को भी कहा था कि वापस आ जा, पर वो खुद नहीं आया था और अपने देश के लिए लड़ता लड़ता मरा था। तो बता दे, ब्रिटिशर्स ने धर्म भ्रष्ट किया था बहुत सारे लोगों का। उन्होंने इंडियंस को क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिया था और वो साउथ इंडियन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और उन्होंने इंडिया की कैपिटल भी चेंज कर दी थी, कलकत्ता से न्यू दिल्ली, ताकि उनको आसानी हो हर चीज़ में।
तो क्या मुगल है, मुगलों की आर्मी में क्या अंग्रेजों को बैठाओगे तुम? इंडियंस ही तो आएंगे मुगल की आर्मी में। अगर इंडियंस ने डेवलपमेंट की है, अपने लिए की है, किसी लिए भी की है, ज़्यादा करी है। और ब्रिटिशर्स ने जो डेवलपमेंट की है ना, वो अपने फायदे के लिए करी है। अगर रेलवे ब्रिटिशर्स नहीं बनाते तो भी हम बना सकते थे। ब्रिटिशर्स ने तो हमें फ्रीडम भी नहीं दिया था बोलने का। जो वर्मिकुलर प्रेस एक्ट लगा था 1878 में, उसकी वजह से हम अपनी बातें भी नहीं रख सकते थे। क्या मुगलों ने कभी ऐसा करा? और आप लोगों ने एक बात शुरू में कही थी कि जो पेंटिंग बनाते थे, उनके लिए जो काम करते थे, उनको मुगल पैसे देते थे। तो क्या रोड पे चलते लोगों को पैसे देंगे? जो उनके लिए काम करेगा उन्हीं को पैसे मिलेंगे। अपनी टैलेंट दिखाओ और पैसे कमाओ। और आप कह रहे हो कि क्या नाम, उन्होंने रेलवे बनाया। जापान में उन्होंने रेलवे नहीं बनवाया था और आज रिजल्ट देख लो, वहाँ पे ट्रेन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुलेट ट्रेन है सारी की सारी। और अगर वो नहीं बनवाते तो क्या पता हम उससे भी आगे होते। अभी भी इंडिया ने खुद ने हाइपर लूप्स बनवाए इतने सारे, और अभी भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हमने कहा कि इंडिया में यूनिटी नहीं है। ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, पर इंग्लैंड की कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा फाइट हुई है। फिर उधर कहाँ गई उनकी यूनिटी? कहाँ गई? जो कुतुब मीनार बनवाया वो किसकी वाइफ के लिए बनवाया था? वो भी तो उन्होंने बनवाया ही था। ऐसे कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, एक ताजमहल ही है जो कि उसने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। कितने मॉन्यूमेंट्स हैं ऐसे जो कि उन्होंने खुद के लिए नहीं बनवाए थे, ना ही किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए बनवाए थे। और जब विक्टोरिया एक्ट लगा था वेस्ट बंगाल में, तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने मार के रख दिया था भूखमरी के कारण। क्यों? क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था। और आप कह रहे हो कि रेलवे सिस्टम डेवलप किया है। उन्होंने इंडिया का रेलवे सिस्टम 100 साल से भी ज़्यादा बाद में किया है। पहले वो करोड़ों से भी ज़्यादा लकड़ी यहाँ से काट के लेकर जाते थे, और इंग्लैंड में अपना रेलवे सिस्टम पहले डेवलप किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने इंडिया में देखा ताकि वो अपने गुड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सके इंडिया में। दीदी, आप आदित्य ने ऐसे कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन बनवाया। राष्ट्रपति भवन उन्होंने विक्टोरिया के लिए बनवाया था, जो कि इंग्लैंड से आए थे, और उसके लिए भी उन्होंने इंडियन पीपल से, बंगाल से पैसे मांगे थे। उन्होंने खुद के पैसे उसमें भी नहीं लगाए। इंडियंस को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लगाई थी, जैसे पीस एंड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स वगैरह लगाए थे जिनसे इंडिया अपनी बात रख सकता है। और उसने कहा रुद्रमल ने की यूनिटी है हमारे, कोई नोट वो नहीं लेके जाता। पर ताजमहल के ऊपर जो वो है उसके ऊपर कवर टाइप सा वो गोल्ड का बना था, और वो एक इंडियन ही चुरा के लेके गया था यहाँ से। जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था उसमें इंडियंस ने यूनिटी क्यों नहीं दिखाई? आप बोल रहे हो कि इंडियंस में यूनिटी थी। यूनिटी होती तो 1857 के रिवोल्ट के अंदर वो लोग अपनी यूनिटी से लड़ते। जैसे तमन्ना ने बोला कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो भी हम बना लेते। कैसे बनाते? अगर आपने पढ़ा हो तो ब्रिटिशर्स ने जो वुड वगैरह और वो सब लिया था वो खुद का लिया था, और उनके पैसे उन्होंने इतने ज़्यादा उस पर खर्च करे थे, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। और आपने बोला कि जो राह चलते को मुगल क्यों पैसे देंगे? क्यों नहीं देंगे? आपकी पब्लिक है, आपको उसका टेक केयर तो करना ही है, आपको पैसे देने हैं ना, क्यों नहीं देने? तो उसने बोल। और फिर जो आप बोल रहे हो कि इंडिया इतना मॉडर्न हो जाता अगर वो नहीं आते, तो उन्होंने ये ले लिया वो ले लिया। उन्होंने जो इंडियंस सुपरस्टिशियस और ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स थे उनको मॉडर्न में चेंज करा, नहीं तो अभी तक इंडिया मिडीवल उसमें ही रहता। बताओ इसका आंसर। आप अगर कहते हो कि ब्रिटिशर्स ने लोगों को मारा था, तो इंडिया का भी एक ऐसा रूलर था जिसने दूसरा कंट्री इक्वाइप करने के लिए खून की नदियां बहा दी थी, तो वो भी तो इंडियन ही था। ब्रिटिशर्स ने थोड़ी मारा, उसने खून की नदियां बहाई थी इंडिया में, और आज भी अगर जाके देखो तो उस नदी का पानी रेड है। ध्रुव ने बोला ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल बदल दी थी कलकत्ता से दिल्ली में, उनके फायदे के लिए। फायदा तो उनका कलकत्ता में ही था ना, उनका तो सी पोर्ट था कलकत्ता के पास। दिल्ली के पास कहाँ पे पानी है बताइए जरा। शाहजहां ने, आप बोला कि उसने और भी बनवाए थे अपनी पत्नी के लिए अलावा। कौन सा बनवाया था? एक नाम बता दो। दीदी, आप ये बोल रहे हो कि आर्मी में ब्रिटिशर्स, वो मुगल अपनी आर्मी में ब्रिटिशर्स थोड़ी रखेंगे, वो भी अपने में मुगल ही रखते हैं। जहाँ से आए थे वहाँ से उन्हीं के ही बंदे रखते, क्यों इंडियन रख रहे थे? जैसे नामिका ने कहा कि जो कुतुब मीनार बनवाया था वो उन्होंने स्लेव डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनवाया था, उन्होंने किसी की वाइफ के लिए नहीं बनवाया था। मुगल्स ने सती प्रथा सिस्टम नहीं बनवाया था, सती प्रथा सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। एक बार ये बताओ कि जो एक कोर्ट है, जिस कोर्ट में आज इंडिया का हर एक केस जाता है, वो बनवाए किसने थे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब बनवाए किसने थे? और
और एजुकेशन पर अभी आप बात कर रहे थे, एजुकेशन में उन्होंने इतने सारे रिफॉर्म्स करे थे। उन्होंने वेस्टर्न साइंस और मैकेनिक्स की नॉलेज जो है सारी उन्होंने इंडिया में दी थी। यूरोपियन लिटरेचर और जो आप चाय कॉफ़ी पीते हो ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। अगर वो नहीं आते तो आप यहाँ पर बैठे भी नहीं होते। उन्होंने वेस्टर्न साइंस वाला एक्ट 1835 में पास करा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो उन्होंने बनाए थे वो अच्छे एक्ट थे और इंडियंस की भलाई के लिए ही बनाए थे। उन्होंने सारी चीज़ें इंडियंस को मतलब इंडियंस के बिना उन्होंने कुछ नहीं करा, मतलब इंडियंस के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। बिना भी इंडिया कर लेता, पर ब्रिटिशर्स ने हमारा जियोग्राफिकल मैप बनाया है। जो हम मैप यूज़ करते हैं वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और जो इंडिया बाद में डेवलप हो जाता है, ये बात कह रहे हो, तो आज भी बहुत सी कंट्रीज है जिसमें अभी भी रूलिंग सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब भी वो बहुत लेट जाके डेवलप होंगे। और अब जैसे तुमने रिलीजन वगैरह का बोला कि हमारी सब वो ख़त्म कर दिया, तो लेकिन जो सती प्रथा थी वो भी ब्रिटिशर्स ने बैन की थी। ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने पोस्टल सिस्टम भी तो इंट्रोड्यूस किया इंडिया में 1774 में। दीदी आप कह रहे हो कि सोसाइटी का फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स ने किया है, राजा राम मोहन रॉय ने फॉर्मेशन किया, सती प्रथा भी उसी के कहने पे बैन कराई थी। और यशिका कह रही है कि ताजमहल के ऊपर को गोल्डन कवच उतरवा दिया। पहली बात तो वो कोई कवच नहीं था, उसके ऊपर एक मीनार था छोटा सा और वो ब्रॉन्ज का लगवा दिया था उसकी जगह, और इंडिया में ही तो था वो। आप कह रहे हो कि कवच था उसके ऊपर, पहली बात तो कोई कवच ही नहीं था। आप लोग कह रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने अच्छे काम किए। ब्रिटिशर्स ने हमारी बहनों को, गर्ल्स को बेचा दूसरी कंट्री तक। उन्होंने इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ को रोक दिया था, इंडिगो उगा रहे थे। ये बात जानते हुए कि इंडिगो अगर एक लैंड पे एक बार उगा ली गई तो वो लैंड पूरी तरह से खराब हो जाती है। आज भी ब्रिटेन की इकोनॉमी में जितना उनके पास बजट है उसका 20% इंडिया से चुराया हुआ है उनका। और तो और मद्रास प्रेसिडेंसी एक साल में जितना वो लेती थी टैक्स, उससे पूरा लंदन 25 इयर्स तक बैठ के खा सकता था। और वो लोग इतने बुरे थे कि वो रेड कलर के लिए इंसानों का ब्लड यूज करते थे, इंडियंस का ब्लड यूज करते थे। और उन्होंने 65 मिलियन पीपल मारे थे, उनमें से 7 लाख बच्चे थे। उज्ज्वल ने कहा कि 1857 के रिवोल्ट में कहा उन्होंने यूनिटी दिखाई। अंग्रेजों ने इतने परेशान किया इंडियन सोल्जर्स को कि उन्हें यूनिटी दिखाने का मौका ही नहीं मिला। वो इतने उतावले हो गए थे कि उन्हें अभी की अभी अटैक करना था, इसलिए उन्होंने अटैक किया। आप लोगों ने कहा रेलवे उन्होंने बनवाया। आपको क्या पता कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आते तो कुछ नहीं बनता? आपको भी क्या पता कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो कुछ नहीं बनता? बन भी सकता था और बहुत अच्छा बन सकता था। दूसरी बात है, एक यशिका ने कहा कि कोहिनूर अगर ब्रिटिशर्स नहीं लेके जाते तो अफगानिस्तान ले जाता। जरूरी आप वहां जाकर देख कर आए हो कि अफगानिस्तान ले जाता? टाइम मशीन में बैठ के गए थे। राह चलते को हम क्यों देंगे भाई पैसे? आप लोगों ने दिए या ब्रिटिशर्स ने दिए? ब्रिटिशर्स ने तो काम करने वाले को भी पैसे नहीं दिए। आदित्य इतनी देर से बोल रहा है ये बनवाया वो बनवाया भवन बनवाया, पता भी है कितने पैसे लगे थे? ये ब्रिटिशर्स ने जरा मरा से पैसे लगवा के बनवा दिया। हाँ तो विक्टोरिया के लिए बनवाया था, विक्टोरिया के लिए बनवाया था सदन उन्होंने। और एजुकेशन उन्होंने हमें दी जितनी चीज़ों की उससे ज़्यादा हमने उन्हें दी थी। जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनकी सर्जरी वगैरह जो बताया रुद्रबल ने, वो सब हमने दिया था। ज़रूरी नहीं है ब्रिटिशर्स ही पढ़े लिखे, हम भी बहुत पढ़े लिखे थे। और 1943 के अंदर 4 मिलियन बंगालीज को स्टार्व होना पड़ा था, सिर्फ हंगर की वजह से डेथ को देखना पड़ा था, क्योंकि जो खाना था वो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको भेजा जा रहा था। और सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय की वजह से हुई थी, लॉर्ड विलियम वेक्टिंग की वजह से नहीं। आगे बात समझ। ये लोग बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट की। क्या डेवलपमेंट की? 1900 से 1947 तक इंडिया का ग्रोथ रेट ओनली 0.001% था और इंडिया के ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमिक रेट था 23% और उनके जाने के बाद था ओनली 4%। और आप लोग कह रहे हो कि ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत डेवलपमेंट हुई। जो इंडिया की पोजीशन थी 1700 में 24.4% थी, उसके बाद में डिक्रीज होते होते उनकी 1950 में 4.2 बची। ग्लोबल लेवल तो उन्होंने डिक्रीज करा है, हमारा कुछ वो नहीं है। और इतने कमीशंस बनवाए थे उन्होंने बंगाल फेमाइन के टाइम में, तो 1/3 पॉपुलेशन कैसे मर गई? एक भी नहीं मरना था, मरते तो कुछ मरते, कमीशन बनाने में टाइम लगा। 1/3 तो मर ही गई थी वहाँ की पॉपुलेशन। वो इतने गिर चुके थे कि उन्होंने गॉड और गॉडेस की जो फोटोज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स पर लगाई ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको
प्रॉफिट्स मिल सके, और साथ में वो एक सिख के लिए उसकी पगड़ी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, और उन्होंने चाहा कि सिख अपनी पगड़ी उतार कर उनको सल्यूट करे। जैसा कि अभिनव ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाया, ये बनाया, वो बनाया। आपको पता हो ना, तो उससे पहले राजा उनसे अच्छा न्याय करते थे। उन्होंने सारे का सारे इंग्लिश जज बैठा दिए, उसमें कौन अच्छा न्याय करता था? सारे हिंदू रोड पे घर जाते थे और रोडों पे उनसे वो लेटा लेटा के चक्कर लगवाते थे। और आदित्य ने कहा कि राष्ट्रपति भवन बनवाया, और राष्ट्रपति भवन उन्होंने हमारे लिए नहीं बनाया था, विक्टोरिया क्वीन आई थी उसके लिए बनाया था, पता हो तो, और उसमें पैसे भी उनके लगे थे। कमीशन बनाने से पहले ये तो जानना चाहिए था कमीशन होती क्या है। 1/3 पॉपुलेशन मार के एहसान चढ़ा रहे, कमीशन बनाए, सोचा भी था होती क्या है कमीशन। जो उन्होंने रेलवे बनाई थी ना, उसके अंदर इंडियंस को ट्रैवल भी नहीं करने दिया करता था उन ट्रेन के अंदर। यहाँ तक कि बोर्ड डायरेक्टर से लेके जो टिकट कलेक्टर था ना, वहाँ तक वाइट पीपल्स थे। इसमें इंडिया का क्या फायदा कर दिया उन्होंने? उन्होंने जो टी कह रही है, वो टी क्या काम है? उस टी का नुकसान ही करती है कहीं ना कहीं, फायदा क्या करती है? और उन्होंने कहा कि टी उन्होंने लाई थी इंडिया में, तुम्हें पता हो ना, तो इंडिया में पहले से ही टी थी, पर उसका नाम संस्कृत में था, और उन्होंने वो नाम बदल के सीधा इंग्लिश में लिख दिया और कह दिया टी हमने इन्वेंट करी है। और वो यहाँ पे आए थे ना, इसीलिए उनको टी का पता चला था। और पता हो तो इंडिया पहले ब्रिटिशर से ज़्यादा एजुकेटेड था। आज भी अगर उनको कोई मैसेज भेजना होता है ना स्पेस में, तो संस्कृत लैंग्वेज में भेजते हैं, और उसके इंग्लिश के बाद जो सबसे अच्छी लैंग्वेज है ना कंप्यूटर को, संस्कृत ही है, पता हो तो। और 1857 की वॉर के अंदर काफ़ी यूनाइटेड थी, लेकिन पहले वो शुरू हो गई थी, इस वजह से कुछ जो स्टेट्स थे उसके अंदर नहीं थी। जो तुमने सती प्रथा वाली बात की, माना कि वो राजा राम मोहन रॉय का था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय अकेले बिल्कुल भी उसको बैन नहीं कर पा रहा था। उसने ब्रिटिशर्स ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने बैन की, लेकिन वो अकेले उस इंडियन से कुछ भी नहीं हुआ इस बारे में। अगर राजा राम मोहन रॉय को इतना ही था, तो अगर वो कर भी देता तो भी वो पूरे इंडिया में अपनी वो जो लॉ था उसको एनफोर्स नहीं कर पाता। और जो तुमने बात करी कि रेलवे, अगर इतना ही था, इनको रेलवे इतना ही बनाना आता था, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बनाया? अब ब्रिटिश के टाइम पे ही क्यों बना? और तुम बोल रहे हो कि वाइट पीपल को, मतलब वाइट पीपल को ट्रैवल करने देते थे, वाइट पीपल को ट्रैवल करने देते थे, बट अगर वो बनाते भी नहीं तो आज भी रेलवे यहाँ पर नहीं होता, और आज भी तुम यहीं पर सड़कों पे और जो तुमने बोला है कि राह चलतों को पैसे क्यों दें? पब्लिक है, इंसान है, आप उसको फीड नहीं कर सकते, उसको खाना पीना नहीं कर सकते। अरे पहले और फिर उसमें रिवोल्ट में अगर तुम बोल रहे हो कि इतने उतावले हो रहे थे, इतना उन्हें करना था, तो अगर करना था तो यूनिटी होनी चाहिए थी, यूनिटी नहीं थी उनमें, करते कैसे? अगर उनको फ्रीडम चाहिए थी तो थोड़ा डेट जल्दी शेड्यूल कर देते। उन्होंने डेट ही ऐसी करी और फिर उससे पहले ही सारे ही हो लिए। आप अगर बोलते हो कि ब्रिटिशर्स ने वुमेन्स को मारा था, पीटा था, तो क्या इंडियन रूलर्स नहीं करते थे? मुगल, ये एक बार हिस्ट्री झांक के देखो, वो लोग तो पता नहीं वुमेन्स के साथ क्या क्या करते थे। ब्रिटिशर्स तो माना बाहर के भी थे, लेकिन मुगल तो इंडियंस ही थे। जब इंडियंस कोई परवाह नहीं है तो बाहर वाले आके क्या करेंगे? ध्रुव ने बोला कि उन्होंने गॉडेस और गॉड्स की पिक्चर लगा दी थी। अगर तुझे तेरा बिजनेस बढ़ाना है तो तू कहाँ तक गिर सकता है, ये तुझे भी पता है। वो भी अपना बिजनेस बढ़ाना था, वो भी गिर गए। पलक कहाँ गई? पलक ने बोला था कि 1901 से 1947 तक सिर्फ 0.001% वो हुआ था जो भी ग्रोथ। लेकिन अगर इंडियंस वहाँ पे रिवोल्ट करना बंद करते तभी तो वो कुछ करते, पूरे टाइम रिवोल्ट करते गए थे। फाइनली आप लोगों ने देखा कि कैसे हिमालय के बच्चों ने एक बहुत अच्छी ब्रिटिशर्स के फेवर में और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किस तरह की बहुत ज़बरदस्त स्पीच दी है, इस तरह का बहुत ज़बरदस्त आपको एक डिबेट कंपटीशन करके दिखाया है जो कि काबिल तारीफ है। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एनर्जेटिक। इस डिबेट के कंक्लूजन में हमें एक बात तो समझ आती है कि डेफिनेटली ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत सारे फायदे हुए हैं और ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं।
लेकिन फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसा भी हुआ, इंडिया एक मॉडर्न वर्ल्ड में एंट्री तो हुआ, और आज एक मॉडर्न वर्ल्ड में एंट्री करने के बाद ये किस तरह की प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरह से डेवलपिंग कंट्री से ये एक डेवलपर कंट्री में बनने जा रहा है, और किस तरह से अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है। पास्ट का ध्यान न रखते हुए, फ्यूचर को टारगेट रखते हुए, प्रेजेंट में जीते हुए हमें इंडिया को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि किसकी वजह से क्या हुआ और किसी वजह से क्या नुकसान हुआ। अब आगे फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए हमें इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और सबसे नंबर 1 कंट्री बनाना है। तो आई होप आपको बच्चों की कोशिश बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।